Hello students, myself Dhruil Patel and I have taken lecture on introductory portion of fluid mechanics. Today we are going to understand what is fluid kinematics. So start with the topic that what is fluid kinematics. So in this presentation, the main topic is fluid kinematics. Okay, so what is fluid kinematics? Study of behavior of fluid when it is in motion without reference to external force. Now, this we have studied in the presentation in which I have make you understand about the fluid mechanics, its types. In the first presentation, if you haven't watched it, then the above link, the link will generate here. Click on that link, you will understand, you will get to understand that what is fluid kinematics. So the study of behavior of fluid when it is in motion without reference to external force. Okay, prepared by me. So content in this presentation, the content will be as given below. In fluid kinematics, the contents are types of flow lines, continuity equation for 2D. Taste yourself means in that topic I will give some examples to you and you have to taste yourself right, while solving it. And continuity equation for 3 dimensions. Now the first content is types of flow. Means have you ever imagined that we are seeing the water is flowing from here to there? Have you ever imagined that it has also types, that water is also types of flowing, that how it flow, how it not flow, where it is flowing, at which velocity it is flowing, at which in which direction it is flowing. Okay, flow particles you have never imagined. Even I have never imagined until I studied it. So let's understand. So types of flow. Now, which are the types of flow? So steady flow and unsteady flow, uniform flow and non-uniform flow, laminar flow and turbulent flow, compressible flow and incompressible flow, rotational flow and irrotational flow, and last, one-dimensional flow, two-dimensional flow, three-dimensional flow. Oh God, these are so much types of flow. And I have only see one type of flow. से पानी यहाँ से आ रहा है और पानी यहाँ जा रहा है और कुछ मैंने नहीं देखा और कुछ मैंने कभी सोचा भी नहीं है. तो इतने सारे फ्लो कहाँ से आ गए कि भाई ये स्टेडी क्या होगा, अनस्टेडी क्या होगा, ये यूनिफॉर्म क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, लेमिनर क्या होगा, टर्बुलेंट क्या होगा, ऐसा भी कुछ होता है भाई. इंजीनियरिंग है, एवरीथिंग इज पॉसिबल. तो चलो देखते हैं कि क्या है. तो कमिंग टू आवर फर्स्ट टाइप इज स्टेडी फ्लो. तो स्टेडी आप ये वर्ड से ही समझ सकते हैं कि स्टेडी मीन्स क्या. स्टेडी का गुजराती या हिंदी मीनिंग होता है स्थाई. मीन्स एक कांस्टेंट स्पीड से जाता हो,
उसे steady flow कह सकते हैं. We can say that the flow is moving in a constant way is known as steady flow. So seeing the definition of steady flow, it is like it is the flow in which condition of flow remains constant. What is it written? It is the flow in which condition of flow remains constant with respect to time at a particular section, but the condition may be different at a different section. Okay. Now, it is the flow in which condition of flow remains constant with respect to time. Now, which are the conditions? What do you mean by condition in this flow? Do you even know, any one of you know that what is condition in the flow? So, suppose the flow is moving this way, like that. Okay, this is the flow moving. So condition is means first is density. First is density. We can see density as a condition. Second is velocity. You can also see the velocity as a condition. Third is viscosity, acceleration. All the properties of flow is one type of condition of flow. With respect to time, means with respect to time means the flow started moving from this and the flow is continuing in this direction. So I have taken one section here and another section here. So the flow will take time from here to here. But at the same section, it is steady. It is same. The density, velocity, acceleration, all are same. So it is known as steady flow. Means एक सेक्शन से शुरू होगा दूसरे सेक्शन तक जाएगा तो एक टाइम कंज्यूम करेगा तो स्टार्टिंग से एंड तक सेम कांस्टेंट स्पीड होगी तो उसे स्टेडी फ्लो कहते हैं. Let's move on. Flow conditions are velocity, pressure, okay, velocity, pressure, density, cross-sectional area. These are conditions. Means cross-sectional area means we say is mobile. Okay, so here the cross-sectional area is B into D. Okay, here it is same. So cross-sectional area becomes first section also same and second section also same. So flow will enter from here and exit from here. So at both sections, the flow remains constant, okay, and steady. So it is known as steady flow. Okay. See, here is a figure. Here is shown that this is first section entry and this is exit and this is sum of middle section. The velocity is remaining. So density is also constant, density is also constant and velocity also constant. So this is known as steady flow. Means एक फ्लो पूरे एंट्री से एग्जिट तक एक ही स्पीड में जाए उसे स्टेडी फ्लो कहते हैं. ओके, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती. एंटर होता है उसके टाइम, एग्जिट होता है उसके टाइम. सपोज के बहुत बड़ा पाइप है, यहाँ से यहाँ जाने का 15 मिनट लगती है तो 15 मिनट तक एक ही कांस्टेंट स्पीड से जाएगा. ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं, क्योंकि इसे सिर्फ शॉर्ट कंडीशन के लिए ही स्टेडी फ्लो माना जाता है, क्योंकि बहुत आगे तक जाने के बाद उसकी डेंसिटी, उसकी वेलोसिटी और विस्कोसिटी में चेंज हो सकती है. सॉरी, विस्कोसिटी में. okay. क्यों डेंसिटी में चेंज होगा? आप तो ऐसा बोलोगे चलो पानी ही डाला है तो पानी ही निकलेगा ना, तो डेंसिटी में क्यों चेंज होगा? बिकॉज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास प्लस वॉल्यूम. Mass of fluid upon volume of fluid. Okay,
तो आगे जाके वॉल्यूम कम होगा, तो डेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज भी हो सकती है. सॉरी, इट्स रॉन्ग. Density will be same because the cross sectional area is same. Okay, जागते रहो. Unsteady flow. So unsteady flow is the opposite of steady flow. The condition of flow changes with respect to time. Changes. इसमें changes होगा, उसमें change नहीं हो रहा था. Okay, should I take a dark color? So I'm not in my pointer test. So it is the flow in which condition of flow changes with respect to time. Changes. In the previous definition, it was constant at a particular step. See, now how can we understand in this? So here we have given a vessel is full of water. Okay, and here it is given a pipe. Okay, the pipe is connected with the vessel here. Oh, orifice is made here. Orifice means one type of hole, means hole, hole. So the water filling in this vessel from here. After that, the water will move from here to here and exit from here. Okay, so the section is combined, so we can say it is one section. दोनों को ज्वाइन किया हुआ इसलिए हम उसके एक सेक्शन कह सकते हैं. तो यहाँ से फ्लूइड एंटर होगा, उतनी ही वेलोसिटी से यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो छोटा होल किया हुआ है और यहाँ से निकलेगा फ्लूइड. तो it is changing, change in a velocity. It will be changed in a density also because volume will be also changed. Cross sectional area changes. That's why volume also change. That's why density will be also changed. So density here will be different and here will be different. Here is varying and here it is constant. Why it is constant? Because the cross sectional area from here to here is constant. That's why. Okay. So यहाँ पे अनस्टेडी फ्लो आपको दिखने मिलेगा क्योंकि दोनों वेसल का डायमीटर डिफरेंस है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में डिफरेंस होगा तो फ्लो रेट में भी डिफरेंस होगा. तो अब मुझे ये बताओ कि लार्जर डायमीटर होता है वहां फ्लो ज्यादा होता है, वहां पे डिस्टेंस ज्यादा, यानी कि फ्लो रेट मीन्स वेलोसिटी ज्यादा होती है कि छोटे डायमीटर में वेलोसिटी ज्यादा होती है. एक एग्जांपल देता हूँ. आप गार्डन में हो और फ्लावर्स को पानी दे रहे हो, ठीक है, इरिगेट कर रहे हो. तो जब अपन ऐसे पाइप से फ्लो करते हैं ना वाटर को, तो अपन को ऐसा बोरिंग लगता है कि यार कितना कम स्पीड से जा रहा है, कितना कम. तो हम क्या करेंगे, ये उंगली है ना आगे रख देंगे, तो अपन को लगेगा कि जल्दी स्पीड से जा रहा है. वो सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ही होता है. फ्लो तो उतना ही ज्यादा होता है कि जितना उसे जाने देना होता है, बस स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है. ओके, क्यों बढ़ी? क्योंकि हमने उसको छोटा कर दिया फुल को. तो उसको उसको क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया. ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से फ्लो रेट में इंक्रीज हो जाता है. तो छोटे डायमीटर में वहां डिस्चार्ज का रेट स्पीड ज्यादा होता है, बड़े डायमीटर में कम होता है. दिस इज अनस्टेडी फ्लो. नाउ गोइंग टू सेकंड, यूनिफॉर्म फ्लो. Uniform flow. What you mean by uniform flow? It is the flow in which condition of flow remains constant from section to section. अब ये क्या हुआ? The constant discharge through a constant diameter of pipe. तो देखो यहाँ पे डायमीटर कांस्टेंट है, यहाँ पे डायमीटर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जितने डिस्चार्ज से फ्लो होगा वहां पे इतना डिस्चार्ज होगा. यहाँ पे अगर मेजर करें डिस्चार्ज तो उतना ही होगा जितना यहाँ पे होगा, और इतना ही होगा जितना यहाँ पे होगा. मीन्स के इसके लिए पाइप भी कांस्टेंट होना चाहिए, फ्लो भी कांस्टेंट होना चाहिए, और तभी आपको है ना discharge constant मिलेगा. So is the flow in which condition of flow remains constant from section to section. Flow की conditions तो आपको पता है क्या क्या होगी, density,
वेलोसिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सब आगे से पीछे। अब आपको कहे कि इसमें और स्टेडी फ्लो में डिफरेंस क्या हुआ, हम उसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, डायमीटर कांस्टेंट फ्लो। ओके, हमें उस यहाँ यूनिफॉर्म फ्लो में टाइम से मेजर नहीं करना है, हमें उसके फ्लो पे डिपेंड करना है कि ये यूनिफॉर्म जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ओके, उसमें स्टेडी फ्लो में टाइम से टाइम मेजर करना रहता है कि ये टाइम पे इतना है, ये टाइम पे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इज द ऑपोजिट ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो. It is the flow in which condition of flow does not remain constant from section to section. Why? Because the diameter will be changed. Flow है, but ठीक है, वो कांस्टेंट क्यों नहीं रहेगा? ऑब्वियसली डायमीटर में चेंज होगा तब भी ना। देख लेते हैं, कांस्टेंट डिस्चार्ज टू वेरिएबल डायमीटर ऑफ पाइप। वेरिएबल डायमीटर ऑफ पाइप मीन्स के हमने 3-4 पाइप को कंबाइन करके एक पाइप बनाई है। सपोज के यहाँ से एक पाइप जाएगी ऐसे, फिर आगे जाके थोड़ा बड़ा डायमीटर वाली पाइप हो जाएगी, फिर आगे जाके थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से एंटर होगा फ्लो और यहाँ से एग्जिट होगा फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लो जितनी स्पीड से होगा इतना यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे चेंजेस होगा, यहाँ पे फिर इंक्रीज होगा, यहाँ पे फिर डिक्रीज होगा। तो क्या हुआ, आपका फ्लो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, कांस्टेंट स्पीड से नहीं जा रहा। ठीक यूज कर लेता हूँ। See, here the diameter is getting smaller and here it is larger, and gradually the diameter is increasing at point to point. So at each point you will measure the discharge will be different. Each point the discharge will be different. So it is a non-uniform flow. Okay. If you are not getting understand, then please write a comment. So I can change it, and I can change the method of explaining to you. Laminar flow. So laminar flow. Fluid particles move along in well-defined path, straight and parallel. Fluid particles move along in well-defined path, straight and parallel. Means the fluid particles means a water is a generated by a tremendous molecules connecting with each other is also known as fluid particles, and the all fluid particles gather and create a water. Okay, so responsible factors फ्लूइड पार्टिकल्स मीन फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है उसके अंदर के पार्टिकल्स भी एक डिफाइंड पथ में जा रहे हो। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर एक फिगर बनाऊं कि ये फ्लो मूव हो रहा है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से पैरेलल जाए और एक ही पथ में, जैसे ये पहला पार्टिकल ऐसे ही पथ में जाए तो उसके लाइन में पीछे पीछे ही जाए, मीन्स क्या कहते हैं सिंसियर लाइन, उसमें ही अपन जाएगा। हम स्कूल में जा रहे हैं तो पता है अपन को डिसिप्लिन सिखाते हैं, मीन्स डिसिप्लिन में जाए, कोई ओवरटेक नहीं करे, एक डिफाइंड पथ में जो पथ दिया है वहीं जाए और पैरेलल ही जाए और एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस भी मेंटेन रखे, उसे पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या होते हैं? फर्स्ट इज हाई विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। विस्कोसिटी मीन्स थिकनेस। ओके, सो अगर हम वाटर को फ्लो करेंगे तो वो वेल डिफाइंड पथ में नहीं जाएगा, पर अगर हम ऑयल या ग्लिसरीन को फ्लो करेंगे तो उसे जहां फ्लो किया है वहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी हाई है। ओके, तो विस्कोसिटी हाई है मीन्स मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज्यादा अट्रैक्ट है और वो एक ही डिफाइंड पथ में जाएगा। पर वाटर की विस्कोसिटी लो है तो वो कहीं पे भी चला जाएगा, खींचा चला जाएगा, ठीक है। सेकंड, लो वेलोसिटी ऑफ फ्लो। लो वेलोसिटी मीन्स स्लो स्पीड से जाना चाहिए। अगर ज्यादा स्पीड से हम ऑयल या बेसन को भी फेंकेंगे वो भी कहीं पे जाएगा, ठीक है। लेस फ्लो एरिया मीन्स थोड़े एरिया तक ही और आगे जाके अपने अपने तरीके से। वो ऐसा कहते हैं ना, अपन को किसी कोई एडवाइस देता है तो थोड़े टाइम तक अपन के माइंड में एडवाइस रहती है, फिर उसके बाद जैसे थे वैसे, वैसा ही है लेमिनार फ्लो। ओके, कुछ टाइम तक हम लेमिनार पोर्शन में रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रह सकते। रेनॉल्ड्स नंबर
Now what is Reynolds number? So I will make you understand in a further slide. After this types of flow and flow lines is completed, after that I will make you understand in Reynolds number. But in short, I can explain that what is Reynolds number. So the Reynolds number is like ऑब्वियसली रेनॉल्ड है क्या, तो रेनॉल्ड होगा क्या आपको पता है, तो रेनॉल्ड एक टाइप का एक वो क्या कहते हैं साइंटिस्ट है जिसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए लेमिनार फ्लो पे। तो कैसे एक्सपेरिमेंट किए मैं दिखाता हूँ। तो उसने ये एक वेसल लिया, ठीक है, ये वेसल लिया, फिर यहाँ पे दूसरा एक वेसल लिया, पाइप उसको ट्यूब से कनेक्ट, ओके, फिर यहाँ पे एक उसने वाल्व रखा, क्या रखा, वाल्व, ओके। और यहाँ पे उसने जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना, वाल्व, उसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना, वहां पे क्या कर दिया उसने, वहां पे कर दिया ग्लास ट्यूब, क्या रखी, विजिबल फ्लो, मीन यहाँ से यहाँ तक उसको फ्लो विजिबल दिखाई देगा, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक उसे वो फ्लो पाइप में से विजिबल दिखाई देगा, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कलेक्शन होगा, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा वाटर, जो यहाँ से बाहर निकलेगा, कहाँ से, यहाँ से वाटर यहाँ से कलेक्ट टैंक में चला जाएगा। अब उसमें चेंज क्या है, तो ये देखो, ये जो पाइप है ना उसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ एक बीकर रखा हुआ है, इसमें कलर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, कलर, मीन्स एकदम ज्यादा विस्कोसिटी वाला कलर रखा हुआ है। तो जैसे यहाँ से पानी फ्लो होगा ना, तो उसके साथ कलर भी, इंक भी आएगी। तो होता क्या है, मैं आपके यहाँ पे 3 ये बना देता हूँ बॉक्स। ये 3 बॉक्स जो है वो आपको क्या एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो विजिबल पोर्शन है ना, उतना पोर्शन मैंने यहाँ पे बनाया है। तो अगर पहले पानी थोड़ा फ्लो किया, यहाँ से पहले अपन ने पानी थोड़ा फ्लो किया, वाल को थोड़ा सा ओपन किया, धीरे से ओपन किया, तो फ्लूइड पार्टिकल्स कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, देख रहे हो आप, एक दूसरे से पैरेलल और एक ही पथ में जा रहे। सॉरी, बट वो क्या है कि मेरा मैन्युअली ड्रॉ कर रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा स्लोपी हो जा रहा है, पर आप एक्सटेंड, आप समझ लेना कि एक पथ में पैरेलल जा रहा है। और दूसरे पक्ष है, अगर वाल को मैं थोड़ा और ओपन करता हूँ तो पथ कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, पानी ऐसे मूवमेंट करने जाएगा, फ्लो पार्टिकल्स ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हुए जाएंगे, थोड़ा डिस्टर्ब सा हो जाएगा। और पूरा वाल ओपन कर देता हूँ तो फ्लो पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, जिगजैग वे में अपने आप चला जाएगा, ठीक है। तो ये पहला जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं लैमिनार, जिसको उसने नंबर दिया, रेनॉल्ड्स नंबर दिया, क्या दिया उसने, 2000 से कम। और ये दूसरा जो है ट्रांजिशन फ्लो, वो 2000 से 4000 के बीच में होता है। और ये है टर्बुलेंट फ्लो, वो 4000 से आगे होता है, ठीक है। यहाँ पे देखा आपने, लो वेलोसिटी है इसलिए वो लेमिनार में जा रहा है, यहाँ वेलोसिटी को ग्रेजुअली थोड़ा इंक्रीज किया है इसलिए वो ट्रांजिशन में जाएगा, और यहाँ पे वेलोसिटी को पूरा इंक्रीज कर दिया तो वो किस में चला गया, वो पूरा टर्बुलेंट में चला गया, ठीक है। तो अपना जो है वो कंडीशंस जो है वो यहाँ पे अपन को पता चल गई कि क्या, कि लो वेलोसिटी में है,
लेस फ्लो एरिया में है और हाई विस्कोसिटी। तो आपको समझ पड़िए कि लैमिनार फ्लो किसे कहते हैं। मूव अलोंग अ वेल डिफाइंड पाथ एंड पैरेलल, दिस इज लैमिनार फ्लो। ओके। सेकंड, टर्बुलेंट फ्लो। तो फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन जिगजैग वे। मैंने एक्सप्लेन कर दिया रेनॉल्ड्स नंबर में, इसलिए आपको इसमें अच्छे से पता चल जाएगा। क्रॉसेस द पाथ ऑफ ईच अदर। So Reynolds number greater than 4000 like this. This is a zigzag path. Crosses the path of each other. ये यहाँ से यूं गया, यहाँ से यूं गया, ये यूं जाएगा। ठीक है, इसे turbulent flow कहते हैं। So now coming to the compressible flow. So which are the compressible flow? So density of fluid changes from point to point. All gases are compressible flow. Okay. Point to point कब change होगी? अभी हमने देखा नॉन यूनिफॉर्म में ऐसे डायमीटर चेंज होगा तो डेंसिटी भी चेंज होगी ना। तो देख लो इस पॉइंट पे फ्लूइड है, अगर इनको कॉम्प्रेस किया तो यहाँ पे चला जाएगा। तो क्या हुआ, वॉल्यूम तो सेम रहा पूरा, पर यहाँ इसका वॉल्यूम कम हो गया। ओके, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो डेंसिटी चेंज, compressible fluid changes from point to point, known as compressible fluid, and it's only gaseous, not in liquid portion. Okay, because gas is one type of fluid. Incompressible fluid, constant point to point, like this. Volume 1, volume 2, point to point it is constant. So it is incompressible fluid. इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत है। Now coming to rotational. What is rotational flow? हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है कि थोड़ा सा बोर तो कर ही देता है, इसलिए ना मैं ज्यादा से ज्यादा ऐसे ट्राई करता हूँ कि आपको इजी तरीके से समझा सकूं। हाँ, मैं पता है कभी कभार मैं टेक्निकल वे में नहीं एक्सप्लेन करता, बट अगर एक बेसिक फंडा क्लियर हो जाए ना आपका, तो टेक्निकल वे की नीड नहीं है, आप टेक्निकल वे अपने आप समझ जाओगे। और इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट वीडियो बने ऐसा करता हूँ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टाइम कवर करूंगा तो आपको फिर फ्लूइड है ना बहुत इवोपोरेशन हो जाएगा सब माइंड में। तो रोटेशनल फ्लो, in which the fluid particle also rotate about its own axis. भाई अब ये क्या आया? अब वो अपनी ऑन एक्सिस पे कैसे रोटेट करेगा? One second, wait. Okay, so starting with coming to the topic, uh, in which the fluid particles also rotate about their own axis while flowing. So what is that? So see, uh, okay, I am making you understand in this only. Uh, if the fluid particles is flowing like this, the particles like this, they made, one second, ये फ्लो यहाँ से ऊपर जा रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है। तो फ्लो है ना रोटेटिंग मूवमेंट में जा रहा है ऐसे, वो अपने पर फ्लो के हिसाब से चेंज कर रहे हैं। सपोज के ऐसे अपन देख ले तो अपने एक बाल्टी पानी से भरी हुई है, उसको हम हाथ से यूं यूं पूरा हिलाएंगे, फिर अंदर एक वो मैच स्टिक्स डालेंगे, तो वो फ्लो के साथ अपना डायमेंशन भी चेंज करती, अपनी पोजीशन भी चेंज करती रहेगी। या तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अपन जब छोटे थे तो पता है एक फ्लो जाता होता था, पानी का ऐसे फ्लो जाता है, तो उसमें अपन पेज की वो बोट बनाते थे, कागज की बोट, तो उसको हम उस पर रखते थे, तो वो बोट है ना घूमती घूमती जाएगी ना, तो समझ लेने का कि वो फ्लो रोटेशनल है। पर वो बोट है ना सीधी जाएगी तो समझ लेने का ये इरोटेशनल फ्लो, जैसे कि
Here it is shown a one vessel. हमने हाथ से फ्लो को ऐसे घुमाया है तो फ्लो भी अपनी पोजीशन, तो ये मैच स्टिक डाली तो पोजीशन अपनी फ्लो के हिसाब से चेंज कर रही है, तो इसे रोटेशनल फ्लो कहते हैं। अब ये रोटेशनल फ्लो में क्या होगा कि डू नॉट चेंज, डू नॉट रोटेट अबाउट देयर ऑन एक्सिस, वही सेम फिगर पर मैच स्टिक्स है ना, सेम टू सेम रहेगी, उसकी जैसे उस हमने प्लेस की थी वैसे की वैसी वो रोटेट होगी, उसकी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। देख लो, इसमें चेंज की थी, इसमें नहीं की चेंज, तो इसे हम इरोटेशनल फ्लो कहेंगे। अगर बोट जो है वो पानी पे डाली वो सीधी जाएगी तो वो इरोटेशनल फ्लो, पर घूमती घूमती जाएगी तो समझ लेने का कि ये फ्लो रोटेशनल है। हम अपनी आई से नहीं देख सकते कि ये रोटेशनल है कि इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, वन डायमेंशनल फ्लो in the flow parameters such as velocity, pressure, depth, etc. at a given instant in time only vary in one direction. Means अगर कोई फ्लो जा रहा है तो वो एक ही डायरेक्शन में वेरी होगा। हर एक डायरेक्शन में तीन डायरेक्शन आती है तो उसमें से एक ही डायरेक्शन में वेरी होगा। जैसे कि ये फ्लो वाटर सरफेस यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरे कोई डायरेक्शन में नहीं जा रहा, तो उसे वन डायमेंशनल फ्लो। सेकंड, टू डायमेंशनल, सब समझ गए कि दो डायरेक्शन में जाएगा। कैसे? इट कैन बी एज्यूम्ड दैट द फ्लो पैरामीटर्स वेरी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन वन डायरेक्शन एट राइट एंगल टू दिस डायरेक्शन। तो ये देखो, अब ये चेक डैम समझ लो और यहाँ से फ्लो जा रहा है और यहाँ पे क्या दिया है, ऑब्स्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से फ्लो वेरी हो जाएगा, अलग डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। तो एक ये डायरेक्शन हुई और एक ये डायरेक्शन हुई, तो दो डायरेक्शन हो गई, तो इसलिए उसे टू डायमेंशनल फ्लो कहते हैं। और लास्ट, थ्री डायमेंशनल फ्लो वेरी इन ऑल डायरेक्शन, वो सारी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये फिगर है, ये डैम के पीछे का भाग है। तो यहाँ पे देखो अपन, ये फ्लो यहाँ से यूं आ रहा है तो ये यहाँ पे भी वेरी हो जाएगा और यहाँ पे उसे स्लोप मिल जाएगा तो यहाँ पे भी चला जाएगा और ये यहाँ पे ऐसे भी चला जाएगा, तो तीनों तीन डायरेक्शन में जा रहा है फ्लो, तो उसे कहते हैं अपन थ्री डायमेंशनल फ्लो। और थ्री डायमेंशनल फ्लो अपन को बहुत कम दिखने मिलता है। वन डायमेंशनल, एक पाइप में से फ्लो हो रहा है वो वन डायमेंशनल हो रहा है, चेक डैम में से जा रहा है तो वो टू डायमेंशनल हो रहा है, और डैम के पीछे जा रहा है तो उसे थ्री डायमेंशनल। सो स्टूडेंट्स, today we are keeping till this only. Now another topic, types of flow lines, we will cover in next lecture. So for today this much only. Now if you have any query then please comment me and please ask me so that I can answer your query. Okay, so for today this much, and take the review and do revision and study well. Okay, bye bye.